जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आज सुबह से खबर चल रही है जिसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। उस खबर से रिलेटेड आपको इन डीप, एक तो होती है डीप, एक इन डीप, बहुत अंदर तक की खबर देने वाला हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है पहले आप उसको सुन लें, अगली बात फिर करते हैं। Scared. Also, my father was alive. My father was in that party as well, whom I had introduced, unfortunately. But Naeem ul Haq, as long as he was alive, he used to be very nice to me. But even with him, I never discussed the book. And he was kind of worried about me because I knew he knew. But we would never say anything. He would keep, kabhi mujhe message kar lete the, कि Haja, how are you? Are you okay? I'd be like, yeah, I'm okay. I'm fine. I guess, I think he was worried about me. Yeah. So he knew how I was, shadowed, like blackballed after that. My career was literally taken away from me. My sanity to a great extent. I mean, it's a very dark experience, but I know people who have had much worse experiences with him. Much worse. Really? Oh, yeah. Much worse. People are not what they seem and who they are in public. हम तो एक्टिंग करते हैं ना, कोई स्क्रीन पे दे दे, एक्टर्स हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेल्फियां ले लेंगे पार्टी में जाके। बट सम पीपल हु आर पेडेस्टल पे, जिनको एक मसाया बना के किया गया है, और वो नहीं है, वो नहीं है। और उसका उल्टा है बिल्कुल। या टोटली, एब्सोल्युटली, टोटली। और क्या मैं पहली इंसान हूँ जो ये बात कर रही है? रोज टीवी पे कोई ना कोई बैठा होता है, कुछ ना कुछ कह रहा होता है। क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सब लोग बेमानी बात कर रहे हैं? क्या ये सब लोग हवा में बात कर रहे हैं? क्या ये सब डर के बात कर रहे हैं? मुझे 9 साल पहले, मैं तो इसका हिस्सा नहीं हूँ जो आज का पाकिस्तान है, जो आज हो रहा है। So why did I speak my truth as a मामूली सी एक्ट्रेस? जो लोग कहेंगे ना कि ये कौन है, ये क्या है, who is she trying to look? No, I did this in 2014. पाकिस्तान में तो आपको पता है हमारा कौमी मशगला विक्टिम ब्लेमिंग है। सबसे पहले हम यही करते हैं। हाँ। चाहे कुछ भी हो, कोई भी लड़की आती है, कोई भी केस लेकर, तो हम सबसे पहले उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। तो ये टीवी पे जो रोज जाके बोल रहे हैं, क्या वो भी यही है? I'm sorry, that's not the case. I mean, हर किसी को अपना डेमोक्रेटिक हक है, वो किसी को भी सपोर्ट करें। मैं सिर्फ I think the one thing I'm really guilty of is bringing my father into this party. But he's passed away, he's no more. उन्होंने sideline हो गए. I mean, that was awful of me. I think that was really bad. But then a lot of us didn't know at the time ना कि चलो ज़ाती ज़िंदगी में तो कोई ठीक नहीं है, लेकिन शायद पब्लिक लाइफ में उसने इतना अच्छा किया है, maybe he will be good at that. But look where we are now. Look where our country is right now, and I look back and I think, just for me, it was a bad experience. One of the many people whose careers got affected by this person and all of that. But my country got affected a lot as well. I'm guilty of one thing that I really feel bad about. Like, I wish I'd never tried. My father was very, humble, down to earth guy who used to help people, and on bringing him into this party, I was like, oh God, I feel really bad about that. But he's not here anymore, and he had sidelined himself, of course, on his own accord. We never discussed it. So awkward for a father and daughter to have this kind of conversation. Can you imagine? In our society. So, there's things that you live with, and I live with those things that I feel really bad about. It is sad. Yeah, it is really sad. Thinking, like a lot of people think now, oh my God, this person is going to save the country. But like, ये नहीं होगा तो मुल्क में कुछ चलेगा ही नहीं। Alright, भाई, that's not the case, is it? It's not the case. Grow up, open your eyes, look at the facts. तो ये मेरे तो कोई, I've moved on from all of that. I'm trying to do the best I can, from whatever happened to me. लेकिन ये है, in 2014, I had already said that this is the wrong number.
रॉन्ग नंबर। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे आपसे कॉन्वर्सेशन करने में कि आप काफ़ी ज़्यादा ना ओपनली डिस्कस करती हैं और ओपनली अपने ओपिनियंस को दिखाती हैं। जो सोचती हैं वो अपने मुंह पर खुलकर बोलती हैं कि यार ये ऐसा है। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में इस हवाले से, क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट को एंड करने जा रहे हैं, एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट द वुमेन राइट्स इशू इन पाकिस्तान। कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं, या खुदा ना खास्ता अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो? ऑब्जेक्टिफिकेशन जो ऑब्जेक्टिफिकेशन घर से आपकी शुरू होती है कि अगर आप औरत हैं तो आपको घर में बंद रहना ही आपका तहफ़्फ़ुज़ है। नहीं, आपको बेटों को ये बताना है कि आप जब बाहर जाएं, आप किसी औरत, किसी बच्चे, किसी भी इंसान को तहफ़्फ़ुज़ दें, उसे नोचे नहीं। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, तो ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है। सबसे ज्यादा औरतों से ज्यादा सबसे ज्यादा आपको पता है बच्चे, मेल किड्स सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल उसका के विक्टिम्स हैं। ऐसे ही, और बोलते नहीं है, बताते नहीं है। बच्चा क्या बताएगा? आई गॉन थ्रू इट एज अ किड। बच्चा क्या बताएगा? बच्चा तो डरता है कि आप ब्लेम कर देंगे, अम्मी जाके 2 चपेड़े मारेगी, गई क्यों थी। ये चीज हो रही है ना कि घर से क्यों निकले थे। ये घर से निकलने क्या है? कोई रिश्तेदारी होता है या कोई घर में काम करने वाला नौकर ही होता है जो आपके साथ ये करता है। तो मेक दैट सेफ ना। बंद करने से तो कुछ चेंज नहीं होना। आप लोगों को ये बताइए, जब औरत को देखना है, एक ऑब्जेक्ट को ही देखना है, इंसान है भाई। अब हम लोग बैठे हैं, we look at each other as two people, as humans. जो आप उसको इंसानी तस्वर नहीं करते, आप उसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट करते हैं कि वो उसको देख के पता नहीं दिमाग में क्या आ जाएगा। और ये जो आपने बात बोली ना कि घर के अंदर सेफ नहीं होता है, that's true. 90% of it. Majority of the cases sexual harassment के, स्पेशली बच्चों के साथ जो होता है घरों के अंदर होता है। चाहे वो काम करने वाले हों, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता रिश्तेदार हो, सगे करीबी रिश्तेदार। वेरी वेरी स्कैरी, वेरी सैड। व्हाई पहले नहीं बोलते थे ये चीज ना। माइंडसेट चेंज करना है कि तो ओनर्स हमने डाल दिया उस पे जो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट औरत पैदा हुई कि आपको तो कोई भी देख के टेम्पटेशन से कोई कुछ कर सकता है। जब आप ये कहेंगे कोई कुछ भी कर सकता है, फिर तो आप जितना ढांप लें, आप कुछ भी जितना ढांप लें, जितना। जी, तो फिर आपने सुनी, और ये जो खातून बोल रही हैं, ये पहले हमारा जब बचपन, मेरा तो बचपन होता था, पता नहीं आपका क्या होगा, तो उस वक्त एक ड्रामा चला करता था, अल्फा ब्रावो चार्ली, धुआं, यानी इस टाइप के ड्रामे आते थे जो ISPR के ताउन से बनते थे। आजकल इश्तराक से बनते हैं, या आज से पहले इश्तराक से बनते थे। तो वो बाद में कोई टेन्योर चेंज हुआ, तो उस दौरान तो बड़े ड्रामे बड़े हिट हुआ करते थे। अल्फा ब्रावो चार्ली का तो मुझे याद है, या धुआं ड्रामा था, कि उस टाइम पर ना रोड पे जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि सब सो गए, रोड पे बंदा नजर नहीं आता था। बड़े हिट ड्रामे हुआ करते थे। तो उसके अंदर ये एक्ट्रेस हुआ करती थी, और इन्होंने बात की है किसके बारे में, उस बंदे का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, लेकिन उसको प्लीज इसके साथ मिलाइएगा मत। अक्सर औकात हमने देखा है कि जाला लगा हुआ होता है, इसमें एक मकड़ा होता है। अब मकड़े भी टाइप्स के होते हैं ना। एक होता है अयाश मकड़ा, वो अयाश मकड़ा ना नजर रखे खड़ा होता है। वो नजर रखता है कि कब कोई मक्खी, कोई उसकी पसंदीदा चीज पास से गुजरेगी, उसको वो पकड़ लेगा, उसको चूसेगा, उसके बाद उसको वो फेंक देता है। उसको नहीं पता होता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसे ही एक अयाश मकड़े के बारे में हमें बताया है हाजरा खान ने। ये हाजरा खान जो हैं, ये बेसिकली कोयटा से ताल्लुक़ रखती हैं, कोयटा की एक्ट्रेस थी, और इनके ये बेसिकली पन्ने ज़ई एक कबीला है, सब कास्ट है, ये उससे ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने इन डीप बहुत सारी बातें की हैं। हमारे एक दोस्त हैं दानियाल शेख साहब, कराची के रिपोर्टर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो उनके साथ इन्होंने कुछ अपनी आप बीती शेयर की है, और उस आप बीती को बहुत जल्द आप इंटरव्यू की शेप में, वैसे वो बुक लिख चुकी हैं, एक और बुक लिख के बैठी हैं जिसको वो शाया करने वाली हैं। जो खबर है वो ये है कि ये बात जो आज सोशल मीडिया बता रहा है, ये बात 1.5 साल पहले मुझे पता चल चुकी थी, लेकिन आप लोगों तक हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस वक्त तक अथेंटिकेशन नहीं थी। अब अथेंटिक हो गई है, अब आपको इसका हमने दिखाया, आपने उनके अल्फाज सुने हैं, वो क्या कह रही हैं कि लोग जो आके कहते हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं होते ना।
अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने हाइड कर ली हैं, जो वो बताना चाहती हैं। उन्होंने अपना एक बहुत और भी बात शेयर की कि उनके लिए एक बहुत तकलीफ दे पॉइंट जो था, वो तकलीफ दे पॉइंट तब था जब उनके वालिद को प्रेशराइज किया गया और उनको पीटीआई ज्वाइन कराई गई। उसके बाद उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उस वक्त करवाई गई। उस वक्त वो कहानी थी ना, वो एक सफ़े वाली कहानी। तो इस तरह तो इमरान खान ने बेसिक, ये कोई इकलौती कहानी नहीं, इससे पहले हम बहुत सारी सुन चुके हैं। हमें सीता वाइट का भी पता है, हमें टेरियन वाइट का भी पता है जो उनकी बेटी है, जिसको मानने से इनकार करते हैं। उसके बाद जो रेहाम खान ने अपनी बुक में लिखा, फिर जो ऑडियोज़ आई, आई थिंक अलीना खान थी वो, उनके साथ जो एंकर हैं उनके से रिलेटेड जो ऑडियोज़ आती रही, जो ऑडियोज़ मेरा ख्याल है कि कोई भी पर्सन फैमिली में बैठ के सुन भी नहीं सकता। तो वो सारी बातें होती रही। और इस शख्स ने असल बात, गुस्सा इस बात का नहीं इसने क्या किया, उसका पर्सनल मैटर है, क्या करे क्या ना करे, हो सकता है मैंने इससे ज़्यादा गुनाह की हूँ। लेकिन इसके बाद एक लिबादा ओढ़ लेना कि जी मैं तो आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैं तो जिसकी बात का स्टार्ट ही ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन से होता हो। यार क्या कर रहे हो? वो हरकतें, वो बात हुई है कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। तो इसके करतूत सामने आ रहे हैं और काफरों वाले करतूत सामने आ रहे हैं। किस तरह से इसने औरतों की जिंदगी बर्बाद की है और उनको अपने लिए एक ढाल बनाया है। अब बेसिक तो अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी को भी तो इसने ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। वो उनकी अपनी एक लालच थी। वो खबर फरीद मानिका का इंटरव्यू आने वाला है, मैंने आपको पहले व्लॉग में बता चुका हूं कि वो आना ही आना है। अब जिस तरह से इसने बुशरा बीबी को यूज किया, उसने इसको यूज किया, इसने उसको यूज किया, तो अजीब गंद वाली कहानी है। माना आज यूथियों की इस बात को बड़ा कर लेते हैं कि जी वो जो कहते हैं वो ठीक है, जो दीगर सियासतदानों के बारे में, चाहे वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, वो मौलाना फजलुर रहमान है, एक एक बात मान लेते हैं। लेकिन किसी की भी कोई नाजायज औलाद नहीं है, कोई भी इतना बेगैरत नहीं है जो बेगैरतियां इस शख्स ने की हैं। हाजरा खान का जो तफसीली इंटरव्यू है बहुत जल्द आने वाला है। आने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस इंटरव्यू में क्या कुछ होने वाला है। मेरे भी कुछ ख़ास सोर्सेज हैं जो अंदर तक क्या इन डीप तो वो मौजूद हैं, तो उनसे हम खबर लेते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। काम तो मुखबरी का है ना भाई, करनी है तो है। हालांकि इस मुखबरी के चक्कर में मुझे बहुत सारे लीगल नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं, लोगों ने थ्रेट भी करना शुरू कर दी है। लेकिन नहीं यार, इन चीज़ों से ना कभी घबराया हूँ ना घबराऊंगा। आंखों में आंखें डाल के सच बोलूंगा और जिसने जो करना है कर ले।